Hello students, we are seeing Science of class 6, chapter number 3, that is fiber to fabric. This is our day 2 of this lesson. Okay, first of all, let us see what we have seen in the previous video. In the previous video, we have discussed what is the meaning of fiber. What is fiber? Fiber is a thread-like structure, okay, that we obtain from plant, animal, or which is made in a factory. Okay, so fiber is a thread-like structure. Now we know that fiber is used to make yarn. From yarn, fabric is made, and from fabric, clothes are made. Okay, so what is the use of fiber? Fiber is used for making clothes. Okay, let us move to the next page. See, fiber. There are two types of fiber, natural fiber and man-made fiber. Natural fiber examples are cotton, jute, flax, wool, silk, and man-made fiber are rayon, nylon, terracotta and polyester. Okay, I have given you the homework related to the activity based on fibers. Okay, fibers, there are different types of fibers. You have to do an activity on the page, okay, on which you will stick different samples of fiber and write the name of each fiber below it. I hope you all have done the activity. If the activity is done, then please send me the photos on our WhatsApp group. Okay, now let us begin today's topic. Okay, today we are going to discuss natural fibers in detail. आज हम नेचुरल फाइबर्स जो है उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, natural fibers means the name indicates natural fiber means the fiber which is obtained from natural thing से मिलने वाले fiber, that is called as natural fiber. Okay, let us see the definition of natural fiber. What is it? Fibers obtained from plants and animals. Fibers obtained from plants and animals, they are called as natural fiber. जो plant और animals से मिलते हैं वो fibers को हम बोलते हैं natural fibers. Fibers obtained from plants and animals, they are called as natural fibers. Examples देखो क्या है इनके. Examples है, examples of natural fiber: cotton, flax, hemp, jute, silk, wool, camel hair, and here there is the last name is angora hair. Okay, these are different examples of natural fibers. Out of these fibers, the first four fibers, cotton, jute, flax and hemp, these are obtained from plant sources. These are examples of plant fibers. And silk, wool, camel hair, angora, these are examples of animal fibers जो animals से मिलते हैं. ठीक है, राइट डाउन दिस डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स इन योर नोटबुक. ठीक है, फिर हम आगे के पेज पे जाएंगे. सी, नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो है उनको हमने देखा है कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स में आएगा कॉटन, फ्लैक्स, हेम्प, जूट. एनिमल फाइबर्स में आएगा सिल्क, वुल, कैमल हेयर एंड एंगोरा. चार्ट के फॉर्म में हमें याद रखने में कैसे जाती है, आसानी जाती है. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ द चार्ट ऑल्सो. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. सी, नाउ पहली कैटेगरी जो फाइबर्स की हमने देखी थी दैट वाज नेचुरल फाइबर. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ फाइबर्स इज man-made fibers. The second type of fibers is man-made fibers. Man-made fibers are also known as synthetic fibers. Man-made fibers are also known as what? Synthetic fibers. Fibers obtained from chemical substances which are not obtained from plants or animal source are called synthetic fibers. क्या? Fibers which are obtained from chemicals, chemical substances जो plant या animal से नहीं मिलता, ऐसे केमिकल सब्सटेंस से जो फाइबर्स बनते हैं वी कॉल देम एज सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल
प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के हमें इस साल सिर्फ नाम जानने हैं। वी विल डिस्कस मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, मीन्स व्हेन यू विल गो इन 7th स्टैंडर्ड then you will study synthetic fibers in details. No, synthetic fibers we will study in 8th standard. अभी हम सिर्फ प्लांट फाइबर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बट नाम हमें पता होने चाहिए सिंथेटिक फाइबर्स के। दे आर नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट एंड एक्रिलिक। ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम प्लांट फाइबर्स। हमें जो प्लांट फाइबर्स है उनकी स्टडी हमें डिटेल में करनी है। वी आर गोइंग टू स्टडी 2 प्लांट फाइबर्स इन डिटेल, दैट इज कॉटन एंड जूट। ओके, लेट अस स्टडी द फर्स्ट फाइबर, कॉटन। सम प्लांट फाइबर्स। द फर्स्ट फाइबर इज कॉटन। कॉटन आपने घर में देखे, कॉटन को आपके घर में जो मंदिर होता है उसमें जो दिया लगाया हुआ होता है ना, उसमें जो विक्स होती है, दिव्याची वात, दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन। दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन। ऑयल लैम्प्स में विक्स जो यूज की जाती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन कॉटन। कॉटन, कापूस, हम सब ने देखा है, बराबर है ना। तो ये जो सब्सटेंस है ये कहाँ से मिलता है हमें? वी ऑब्टेन दिस सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट। कॉटन जो है ये प्लांट्स को लगता है। ओके, कॉटन के प्लांट का मतलब हमें पता है, प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, है ना। ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इनमें से कॉटन किस प्लांट को किस पार्ट से बनाया जाता है? तो द कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। कॉटन जो है, कॉटन के छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ को फ्रूट्स लगते हैं। कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉटन बोल्स। कॉटन बोल्स बोला जाता है। ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। जनरली लेमन की साइज के ये जो है कॉटन बोल्स होते हैं, और इनके अंदर कॉटन फाइबर जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और जिसके नीचे एक होती है सीड। ओके, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर, ठीक है। ये फाइबर्स जो है ये जो नीचे की सीड है ना, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, और ये जो नीचे की सीड है, ये सीड को एयर के थ्रू कैरी करने के लिए इनकी जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, हम ये सीड्स जो है इनको निकाल देते हैं और ऊपर का जो फाइबर वाला पोर्शन है उसका इस्तेमाल करके हम कॉटन के थ्रेड्स बनाते हैं। ओके, सो व्हाट इज कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम? सी, cotton fibers are obtained from fruits of cotton plant. Cotton fibers are obtained from what? They are obtained from fruits of cotton plant. They are also known as cotton bolls. Cotton के जो fruits होते हैं उन्हें cotton bolls बोला जाता है, and they are about the size of a lemon. देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। ये जो है ये cotton ball जो होता है उसके अंदर ये वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है। कौन सा? कॉटन फाइबर्स एंड सीड ऑफ कॉटन प्लांट। ओके, व्हेनेवर ये स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इट बर्स्ट ओपन। ऊपर का जो कवरिंग है वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर का जो वाइट कॉटन का फाइबर है वो उसके बाहर निकलता है। ये मैच्योर कॉटन के प्लांट्स अगर हम देखेंगे ना दूर से, जब इसकी हम फील्ड्स देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चारों ओर स्नोफॉल हो चुका है, मतलब ऐसे पूरा वाइट दिखता है कॉटन का खेत, ठीक है ना। ये स्टेज होने के बाद में जब ये मैच्योर होके बर्स्ट हो जाते हैं कॉटन बॉल्स, देन दे आर हैंड पिक। उनको क्या किया जाता है? हैंड पिक करना मतलब हाथ से उनको एक एक फ्लावर को क्या किया जाता है, एक एक फ्रूट को तोड़ा जाता है और बाद में उसको कलेक्ट करके आगे की प्रोसेस की जाती है। ओके, सो दिस इज अबाउट कॉटन फाइबर, हाउ दे आर ग्रोन एंड फ्रॉम विच पार्ट दे आर ऑब्टेन्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, कॉटन जो बोल्स है उनको कलेक्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस उनके ऊपर की जाती है दैट इज कॉल्ड एज जिनिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज जिनिंग। व्हाट इज जिनिंग? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। कॉटन के जो फाइबर्स है वो सीड्स से, अभी ऊपर कॉटन का फाइबर है, नीचे सीड है, हमें
थ्रेड्स बनाने के लिए ये नीचे जो सीड है इसका कोई काम नहीं होता है. ओके, सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू रिमूव ऑल दी सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स. तो ये जो प्रोसेस की जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जिनिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू नोट इट प्रॉपरली. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड एज जिनिंग. ट्रेडिशनली इट वॉज डन बाय हैंड्स. अगर मेरे पास थोड़ा सा कॉटन है तो मैं हैंड से भी उसके अंदर के सीड्स क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ. बट नाउ अ डेज दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. कॉटन की जो फैक्ट्रीज होती है उन्हें जिन बोला जाता है. ओके, जिसमें कॉटन के फाइबर्स बनते हैं ना, वो फैक्ट्रीज को जिन बोला जाता है. क्यों? बिकॉज मेनली वहाँ पे कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो जिनिंग की प्रोसेस की जाती है. ठीक है, सो राइट डाउन दिस पॉइंट. जिनिंग, the process of separating cotton fibers from the seed is called ginning. Traditionally it was done by hands. Nowadays it is done by machines. Okay, now let us move to the next fiber. It is jute fiber. Jute fiber जो है, जैसे हमें पता है कॉटन मिलता है फ्रूट से, in the same manner जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट प्लांट जो होता है उसका जो स्टेम होता है, स्टेम्स में कई सारे ऐसे जो उसके पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम हम बोलते हैं, उसके वर्टिकल फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. किसमें? स्टेम ऑफ जूट प्लांट में. और ये जो स्टेम है इसको मतलब कल्टिवेट करने के बाद में, इसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद में, ये जो स्टेम्स है ये प्लांट्स को क्या करते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं. उसको 4-5 दिन पानी पूरा सोख होने के बाद में वो रॉट होता है, सड़ जाता है. आफ्टर दैट दिस फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दी जूट प्लांट. उसके बाद में एक एक धागा उसका आप सेपरेट करके उसको क्या कर सकते हो, उससे जूट के फाइबर्स बनाए जाते हैं. ओके, तो ये बात ध्यान में रखो कि कॉटन कहाँ से मिलता है. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट and jute is obtained from what? Jute fiber is obtained from stem. ठीक है, चलो अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. jute fiber is obtained from stem of jute plant. It is cultivated mostly in rainy season. रेनी सीजन में जूट के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. इंडिया में ये 3 स्टेट्स है जहाँ पे जूट की खेती की जाती है. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम. ओके, कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है? इट इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र. जूट प्लांट, इट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज. जब तक कि वो फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं पहुँच जाते तब तक क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं. जब उसको फ्लावर्स आने लगे तब उसको क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करके बाद में उससे जूट्स के फाइबर्स क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं. जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर्स. फाइबर्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं जूट से, मैंने आपको बताया है पहले ही. द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज. इमर्स्ड मीन्स उसको सोक किया जाता है, भिगोया जाता है कुछ दिनों के लिए. किसे? जूट के स्टेम को. आफ्टर दैट द स्टेम रॉट, वो सड़ जाता है. रॉट का मीनिंग होता है सड़ना. ओके, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स. उसके बाद में हैंड से उसके एक एक धागा उसका क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. दैट इज द वे ऑफ ऑब्टेनिंग fibers from jute. Okay, so in this way we have seen 2 kind of fibers, that is कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर. ठीक है, इतने टॉपिक के ऊपर के नोट्स आपको क्या करने हैं, लिख लेने हैं. ओके, ये नोट्स लिखने के बाद में आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस. आज के जो क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ आपको आगे के पेज के ऊपर दिखा रही हूँ. दिस क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ये क्वेश्चन से पूरे लिख लो बुक में. देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस. इसको पॉज करो वीडियो को, ये क्वेश्चंस लिख लो और बाद में इसके आंसर्स आपको क्या करने हैं, नोटबुक के अंदर लिखने हैं. क्वेश्चंस एंड आंसर्स होने के बाद में, नोट्स लिखने के बाद में, जब ये पूरा चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद में आपको चेकिंग के लिए ये सारी चीज़ें मुझे फॉरवर्ड करनी है. ओके, होमवर्क आप डेली अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर डाल सकते हो, बट आफ्टर दैट आई वांट एवरीवन्स PDF फाइल व्हेन कंप्लीट चैप्टर इज
फिनिश्ड। ओके, तो इसके लिए डेली वर्क करो, रोज़ का वर्क रोज़ करो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब बुक कंप्लीट करने के लिए ये सारे वीडियोस वन टाइम देखने पड़ेंगे। ओके, बेटर है रोज़ का काम क्या करो, रोज़ करो। और इसके बाद का टॉपिक हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। राइट द होमवर्क एंड डू इट टुडे। ओके, बाय।